أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. کل کی آیات کے اندر میں ایک مطالبہ کافرین اور مشرکین کی طرف سے یہ تھا کہ اس قرآن کو بدل دیا جائے یا قرآن پاک کے اندر میں جہاں جہاں معبودان باطلہ کی برائی اور بتوں کی برائی جو بیان کی گئی ہے یا مکہ کے مشرکین اور کفار کے باپ داداؤں کی جو برائی بیان کر دی گئی ہے ان کو بدل دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی جگہ پر دوسرے قرآن کو بدلنا یا آیاتوں کی جگہ پر دوسری آیاتوں کا بدلنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتوں کو بدل ڈالوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میری طرف جو وحی نازل کی جاتی ہے اسی وحی کا میں اتباع کرتا ہوں اور وہی وحی میں آپ کو بتاتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی, قرآن پاک کی آیات کے اندر میں اگر میں نے تبدیلی کر دی یا اس کے اندر میں کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل ڈالی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, میرے پروردگار سے میں ڈرتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم
वला अदराकुम बिह, ये भी कह दो कि ये जो कुरान पाक तुम पर नाजिल किया जा रहा है या उतारा जा रहा है, अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहता तो मा तलौतुहु अलैकुम, इसकी तिलावत मैं तुम्हारे सामने न करता। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की हुक्म की वजह से मैं तुम्हारे सामने कुरान पाक की आयत की तिलावत करता हूँ। कुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही, अगर अल्लाह ताला चाहता इन कुरान पाक की आयत और इसके मानी और अहकाम और मफहूम से अल्लाह तबारक व ताला तुमको बाखबर न करता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिह अफ़ला ताक़िलून। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर इससे पहले अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ। मैं अपनी उम्र के 40 साल तुम्हारे अंदर में गुजार चुका हूँ। 40 साल तक तुम मुझे अमीन और सादिक कहते थे, अमानत और सदाकत के तुम मेरे लिए दावे करते थे। अब 40 साल के बाद जब मैंने नबूवत का दावा किया तो मैंने कौन सा झूठ आपके सामने पेश कर दिया या कौन सी अमानत के अंदर में मैंने खयानत कर दी। तुम जानते हो कि मैं सदाकत के साथ और अमानत के साथ तुम्हारे दरमियान में 40 साल गुजार चुका हूँ। अफला ताक़िलून, तुम समझते नहीं, मुझे क्यों झूठ बोलना पड़े और मुझे क्यों झूठी बात बताना पड़े। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है, ख़ास करके मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी भी आदमी को ज़िम्मेदार बनाने से पहले या ज़िम्मेदारी देने से पहले उसकी माजी की हालत को सामने रखना चाहिए। माजी गुज़श्ता ज़माने की हालत को सामने रखना चाहिए। इस पर उलमाए किराम और मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो आदमी माजी के अंदर में गुज़श्ता ज़माने के अंदर में अमानत के साथ, दयानतदारी के साथ, सदाकत के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अगर उसने ज़िंदगी बसर की है तो मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल ज़माने हाल के अंदर में भी इसी तरह वो ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा ज़माने के अंदर में भी अपनी पुरानी सिफ़ात के साथ में ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर के अंदर में ये लिखा कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेश किया। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने जब वही इलाही का इनकार कर दिया और कुरान पाक के अंदर में तब्दीली करने का मुतालबा और तकाजा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने अपनी 40 साला ज़िंदगी को पेश किया कि 40 साला ज़िंदगी मेरी देखो, मैंने अमानतदारी के साथ में और सदाकत के साथ में ज़िंदगी गुजारी है। फ़िलहाल भी अमानत और सदाकत के साथ मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ और आइंदा जो भी मेरी ज़िंदगी बाकी है इसके अंदर में भी अमानत और सदाकत के साथ में मैं ज़िंदगी गुजारूँगा। इस पर और भी बातें उलमाए किराम ने लिखी है, वक्त नहीं है कि आदमी के साथ जब तक तजर्बा न हो जाए या आदमी के साथ सफ़र न हो जाए वहाँ तक उसके लिए किसी खैर की या किसी भलाई की राय और मशवरा नहीं देना चाहिए। मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर में एक आदमी को ज़िम्मेदार बनाने का मशवरा हो रहा था कि फ़लाने आदमी को फ़लाने आदमी का फ़लाने इलाके का अमीन और ज़िम्मेदार बना दें। लोगों से राय ली गई तो एक साथी ने राय दी कि वो बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे आदमी है, मेरी राय ये है कि उनको ज़िम्मेदार बना दिया जाए, अमीर बना दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दो बातें हैं, किसी आदमी के अच्छे होने की गवाही देने के लिए दो बातें हैं। तुमने उनके साथ में सफ़र किया या तुमने उनके साथ में कोई मामला किया। तो सामने वाले आदमी ने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन,
میں نے کبھی ان کے ساتھ میں معاملہ نہیں کیا اور کبھی میں نے ان کے ساتھ میں سفر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تب تو تم ان سے واقف نہیں ہو۔ آدمی کے اخلاق سے اور آدمی کے حالات سے واقف ہونے کے لیے دو چیزیں، ایک سفر ہے۔ سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ السفر یسفر اخلاق الرجل، سفر کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور سفر کو عربی کے اندر میں سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے اخلاق کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ سفر کے اندر میں نکلیں، عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو یا جماعت کا سفر ہو، گرمی کا زمانہ ہو، پیدل چل کر کے جانا ہو، بھوک وغیرہ کا مسئلہ ہو اور نہ معلوم کیا کیا پریشانیاں وغیرہ ہوں، اس وقت کے اندر میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں کہ آدمی کے اخلاق کیا ہے۔ تو سفر کی وجہ سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ معاملات کی وجہ سے بھی آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ دینداری معاملات کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ بہت آسان ہے، اصل معاملات جو ہے، یہ معاملات والا دین جو ہے یہی اصل ہے۔ اس سے پہلے برسوں کے اندر میں جو مجلسیں ہوئی تھی اس کے اندر میں بتا چکا تھا کہ دین بنتا ہے 25% محنت سے، دین بنتا ہے 25% محنت سے، اور دین بستا ہے 75% محنت سے۔ 25% اگر محنت کریں گے تو دین بنے گا، لیکن اس کو بچانے کے لیے 75% محنت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ جس آدمی کے معاملات اگر صحیح نہیں ہیں اور معاملات درست نہیں ہیں تو ساری بڑی بڑی عبادتیں اور نیکیاں لے کر میدان حشر میں حاضر ہوگا۔ ایک نیکی اتنی بڑی ہوگی کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ چھپ جائے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے حاضر ہوگا، اس کے لیے جنت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن معاملات والا دین صحیح نہیں تھا تو مطالبات والے آئیں گے، اور اخیر کے اندر میں لوگوں کو نیکیاں دے کر لوگ جنت میں جائیں گے اور لوگوں کے گناہ اپنے سر ڈال کر یہ جہنم کے اندر میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ مسکین اور سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ فقیر یہی آدمی ہے کہ زندگی بھر عبادتیں کر کے لوگوں کو دے کر کے جہنم کے اندر میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلاف جھوٹ بولنا، قرآن پاک کی آیت کو بدل دینا یا قرآن پاک کی آیت کو جھٹلانا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ اور کل بتایا تھا کہ شرک یہ بھی ظلم ہے، کفر یہ بھی ظلم ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے اور اس کو جھٹلاوے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاوے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگار لوگ یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین اور کفار کی حالت کو آگے بیان فرمایا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مکہ کے مشرکین اور کفار یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کی، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسی چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں کہ ما لا یضرہم، جو نہ ان کو ضرر پہنچائے، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع پہنچائے۔ یہ مشرکین جو ہے، خاص کر کے ہمارے یہاں کے جو مشرکین ہیں، ان کے یہاں ایک اصول ہے یا اصولی بات ہے کہ ما یضرک وما ینفعک فہو معبودک، ما یضرک جو تجھے نقصان پہنچاوے، وما ینفعک اور جو تجھے نفع پہنچاوے، فہو معبودک وہ تیرا معبود ہے، اسی کی پوجا کرنا چاہیے، اسی کو مانگنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور اسی کو ماننا چاہیے۔ ان کے یہاں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر میں ان کے یہاں جو ہے اللہ کو چھوڑ کر
माबूदान बातिला की इबादत और पूजा की जाती है। व यक़ूलून, अगर आप इनको समझावें मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को कि ऐसी चीज़ों को तुम मानते हो जो न तुम्हें नफ़ा पहुँचावे और न नुकसान पहुँचावे, तो मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये जवाब देते थे, हाँ उलाई शुफ़ाउना, ये लोग तो हमारे सिफारिशी हैं, हमारी सिफारिश करने वाले हैं, हमारी शफाअत करने वाले हैं इंदल्लाही, अल्लाह ताला के यहाँ। मरने के बाद या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़िंदगी के अंदर में हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम इसलिए मानते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ शफाअत करें और सिफारिश करें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं, कुल, ये अल्लाह के नबी तुम मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को कह दो कि अल्लाह के अलावा इन चीज़ों को अगर तुम माबूद मानते हो और ये अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करने वाले हैं, शफाअत करने वाले, तो अल्लाह को मालूम नहीं? तुमको मालूम है कि ये माबूदान बातिला अल्लाह के यहाँ सिफारिश और शफाअत करने वाले हैं और अल्लाह ताला को मालूम नहीं है कि ये सिफारिश करने वाले मेरे यहाँ कौन कौन है। कुल, कह दो, अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह ताला को ऐसी बातें बतलाते हो या ऐसी चीज़ों की खबर करते हो, बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्दी, तुम अल्लाह ताला को ऐसी बातें बतलाते हो कि जो अल्लाह ताला आसमानों के अंदर में और ज़मीनों के अंदर में हो उसको न जानता हो। कोई ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला न जानता हो आसमानों की या ज़मीनों की और तुम उनको बता रहे हो? अल्लाह ताला को अगर मालूम होता या अल्लाह ताला के यहाँ अगर मौजूद कोई सिफारिश करने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देता कि फ़लाना फ़लाना मेरा महबूब है, मेरा वली है, मेरा दोस्त है, मेरा सिफारिश करने वाला, तुम उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सुबहानहू, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, न अल्लाह ताला के यहाँ किसी की चलती है और न अल्लाह ताला के यहाँ किसी की शफाअत और सिफारिश कबूल की जाती है, जैसा आगे वाली आयत के अंदर में आया था, इल्ला बिइज़्निही, मगर सिफारिश भी कबूल की जाएगी अल्लाह के हुक्म से। व तआला अम्मा युशरिकून, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बुलंद और बरतर है उन तमाम चीज़ों से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला एक मज़मून जो गुज़श्ता ज़माने के अंदर में हो चुका, इसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमाते हैं। 40 साल की उम्र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का और रिसालत का और नबी और रसूल होने का दावा किया। उस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों का इख्तिलाफ शुरू हो गया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अबू लहब ने भी गालियाँ देना शुरू कर दी। इसी के ख़िलाफ़ के अंदर में अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब वाली सूरत नाजिल फरमाई। इख्तिलाफ जो हुआ ये ईमान और इस्लाम के न मानने की वजह से हुआ, वही इलाही को न मानना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को न मानने की वजह से इख्तिलाफ हुआ। इससे पहले यही लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते थे और अपने मामलात और अपने इख्तिलाफात और अपने झगड़ों के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बनाते थे। इख्तिलाफ कहाँ से शुरू हुआ? उलमा किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ नहीं था यानी दीन के बारे में इख्तिलाफ नहीं था, अल्लाह को मानने में और अल्लाह के रसूलों को मानने के अंदर में कोई इख्तिलाफ नहीं था। एक ही मिल्लत, एक ही मज़हब, एक ही अल्लाह को मानने वाले लोग मौजूद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में कुफ्र और शिरक शुरू हुआ, उसी ज़माने से इख्तिलाफ शुरू हुआ।
तो इख्तिलाफ की बुनियाद उलमाए किराम ने लिखी है कि ज़बान का अलग होना ये इख्तिलाफ की बुनियाद नहीं है, या मुल्क और सूबा और इलाके का अलग अलग होना ये इख्तिलाफ की बुनियाद नहीं है, या नसब और ख़ानदान के ऊंचा और नीचा होना ये इख्तिलाफ की बुनियाद नहीं है। हुस्न और जमाल और खूबसूरती या मालदारी ये इख्तिलाफ की बुनियाद नहीं है। इख्तिलाफ की बुनियाद जो है वो सिर्फ ईमान है और तकवा है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन। उम्मत को कहते हैं वाहिदा यानी एक। लोग नहीं थे मगर एक ही उम्मत, यानी अल्लाह को मानने वाली, अल्लाह के रसूलों को मानने वाली और अल्लाह के अहकाम पर चलने वाली और तकवा इख्तियार करने वाली। फ़ख्तलफ़ू, उसके बाद में इख्तिलाफ शुरू हो गया, अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के नबी का इनकार करना। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिया बैनहुम फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून। पहले भी मैं बता चुका हूँ और कल भी बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम और एहतराम करते हुए नाफरमान उम्मत को हलाक और बर्बाद नहीं किया। कल बताया था, जैसे कि अगली उम्मतों के पास में जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम गए और उन्होंने अपने वक्त के नबियों की बातों का इनकार किया और अज़ाब का मुतालबा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन उम्मतों पर अज़ाब नाजिल फरमाया और उनको हलाक और बर्बाद कर दिया और मानने वालों को अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और एहतराम की वजह से इस उम्मत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत और करम का, रहम और करम का मामला फरमाते हुए अगले उम्मतों जैसा बर्ताव इस उम्मत के साथ में नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लोहे महफूज में तकदीर के अंदर में एक बात लिखी हुई है कि दुनिया ये दारुल अमल है और दारुल जज़ा जो है वो आखिरत है। दुनिया काम अमल करने की जगह है और आखिरत जो है वो बदला लेने की जगह है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर में न तो बदला देता है और न तो सज़ा देता है। आखिरत के अंदर में बदला देगा अपनी शायान शान और सज़ा देगा अपनी शायान शान। अगर बददीनी और बेदीनी के साथ दुनिया के अंदर में अगर कोई आदमी तकलीफ़ों में, मुसीबतों में है तो ये अल्लाह का छोटा अज़ाब है, और अगर ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अगर तकलीफ़ और मुसीबतों के अंदर में है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इब्तिला है और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश। सहाबा किराम को भी आजमाया गया, हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुक़द्दर है कि इनको सज़ा दी जाएगी आखिरत के अंदर में। दुनिया के अंदर में जो ईमान लाने न लाने के बारे में जो इख्तिलाफ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसको भी ज़ाहिर कर दे, उसके दरमियान में भी फ़ैसला कर दे। लेकिन अल्लाह ताला के यह मुक़द्दर है, ये फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से वो कलिमा और वो बात, यानी फ़ैसला करने की बात, इख्तिलाफ को दूर करने की बात, अज़ाब देने की बात और सवाब और अज्र देने की बात अगर लोहे महफूज में अगर न लिख दी गई होती तो लक़ुदिया बैनहुम, इन लोगों के दरमियान में फ़ैसला कर दिया जाता फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिन चीज़ों के अंदर में ये लोग इख्तिलाफ़ करते हैं। दुनिया के अंदर में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, सब के सब अपने मज़हब के बरहक होने का दावा करते हैं। कोई भी मज़हब वाला अपने मज़हब को झूठा नहीं मानता, सब के सब यही दावा करते हैं। तो हर एक का दावा सच्चा या हर एक का दावा झूठा, ये इख्तिलाफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दरमियान के अंदर में क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएंगे। व यक़ूलून, फिर मक्का के मुशरिकीन और
कुफ़ार की बात आई, वयक़ूलून, और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई निशानी उनके परवरदिगार की तरफ से उतारी नहीं जाती। ये उनके मुतालबात थे। पहले भी बताया था कि सफ़ा पहाड़ी ये सोने का बन जाए, पहाड़ दूर हो जाए और खेती के लायक ज़मीन बन जाए, पथरीली ज़मीन के अंदर में चश्मे फूट जाए, या नबी अगर होता तो फरिश्ता होता, या जैसे उन पर वही आई हर आदमी के ऊपर में उसके नाम के साथ में कागज़ के ऊपर में लिखा हुआ आसमान से कोई फरिश्ता लेकर के आवे और यूँ लिख दिया जाए कि फ़लान बिन फ़लान फ़लाने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम ईमान लाओ। ऐसी कोई निशानी, जैसे कि अगली उम्मतों के अंदर में भी निशानियों का मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने मौजिज़ात के तौर पर निशानियाँ नाजिल फरमाई, और जब वो ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। तब ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार भी यही मुतालबा करते हैं, कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी उन पर क्यों नहीं उतारी जाती। फ़कुल, ए नबी तुम कह दो, इन्नमल गैबु लिल्लाहि, गैब की बातें ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की मसलियत ये है कि तुम्हारे तकाज़ों को पूरे न किए जाए, तुम्हारे मुतालबात को पूरे न किए जाए। अल्लाह ताला के इल्म गैब के अंदर में ये है कि अगर तुम्हारे मुतालबात को पूरे किए जाएंगे और आसमान पर से कोई निशानी अगर उतारी जाएगी, फिर भी तुम अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसी दुनिया के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल फरमाकर हलाक और बर्बाद कर देगा। कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू, इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फंतज़िरू, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को कह दो इंतज़ार करो, अगर आज़ाब चाहते हो तो आज़ाब का इंतज़ार करो, दुनिया के अंदर में नहीं तो मरने के बाद आज़ाब शुरू हो जाएगा। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, और ये कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। इसके बाद में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का मकरू फरेब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और माबूदाने बातिला को पुकारना, मानना और उनसे मांगना और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, और जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाती तो खालिस अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना, इसका तज़किया अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्राअ मस्सदहुम इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना। वइज़ा अज़क़ना अन्नास, और जब हम लोगों को चखावें, रहमतन, रहमत की बात, मिन बअदि ज़र्राअ, तकलीफ़ों के बाद, मुसीबतों के बाद या परेशानियों के बाद या हालात के बाद, मस्सदहुम, जो उनको पेश आए, परेशानियाँ दूर हो गई तो बीमारियाँ दूर हो गई तो मुसीबतें दूर हो गई, तो अब अल्लाह की तरफ से जब नेमतों की बारिश बरसने लगी, इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना, बस फ़ौरन जैसे मुसीबतें दूर हुई, बीमारियाँ दूर हुई, तंदुरुस्ती आई, हालात बदल गए, अच्छे हालात आ गए, इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना, हमारी आयतों के बारे में, हमारी निशानियों के बारे में उनके लिए मक्र फरेब शुरू हो जाता है, उनकी खुफिया तदबीरें शुरू हो जाती है। एक मक्र है अरबी ज़बान का और एक मक्र है उर्दू ज़बान का। उर्दू ज़बान के अंदर में मक्र फरेब का जब लफ्ज़ आता है तो उसका माना होता है धोखा देने का माना आता है। मक्र फरेब का माना धोखा देने का आता है। कुरान पाक के अंदर में अरबी ज़बान के अंदर में अगर मकरून का लफ्ज़ आवे तो मकरून का माना वो धोखा और फरेब उर्दू वाला नहीं, ये अरबी वाला है। इसका माना है खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर
तदबीर करना, पोशीदा तौर पर किसी काम को अंजाम देना। और उलमा किराम ने लिखा है कि पोशीदा तौर पर अगर कोई आदमी या कोई इंसान किसी काम को अंजाम देता है तो खैर भी हो सकता है और शर भी हो सकता है। पोशीदा तौर पर कोई बात करना या कोई काम अंजाम देना खैर भी हो सकता है और शर भी हो सकता है। खैर है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अच्छा बदला देगा, और अगर शर है तो अल्लाह ताला उसका बुरा बदला देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारे खिलाफ, हमारी आयतों के खिलाफ ये लोग तदबीरें सोचते रहते हैं और पोशीदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मामलात अंजाम देते रहते हैं। कुलिल्लाहु अस्राउ मकरा, कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा मक्र करने वाला है। अब मक्र का माना पोशीदा तौर पर अंजाम देना। पोशीदा तौर पर ये लोग अगर बुरी चीज़ों का मशवरा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मशवरों को ज़ाहिर कर देते हैं, और अगर ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई स्कीमें करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी स्कीमों को नाकाम कर देते हैं। तो कुलिल्लाहु अस्राउ मकरा, अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर इनकी तदबीरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार तदबीर है। इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तदबीर अंजाम देता है। दूसरा, इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून, जो कुछ भी वो लोग मक्र करते हैं, पोशीदा तौर पर जो भी अंजाम देते हैं, तो हमारे फरिश्ते और हमारे कासिद इनको लिख लेते हैं। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के अंदर में होना ये काफ़ी है। दुनिया के अंदर में जिसने जो भी अमल किया, अच्छा अमल किया, बुरा अमल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह का इल्म काफ़ी है। मैदान हश्र के अंदर में इसी के ऊपर में अच्छा बदला और बुरा बदला दिया जाएगा। लेकिन हुज्जत को, दलील को कायम करने के लिए फरिश्तों के पास में भी अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अच्छे अमाल को और बुरे अमाल को लिखवाता है। फरिश्ते लिखते हैं, बुरे अमाल भी लिखे जाते हैं और अच्छे अमाल भी लिखे जाते हैं। अल्लाह के इल्म के साथ साथ मैदान हश्र के अंदर में ये नाम व अमाल लोगों के सामने पेश किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा कि लो ये तुम्हारा नाम व अमाल है, तुम ही पढ़ लो। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया, इन्न रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून, बेशक हमारे कासिद और हमारे फरिश्ते लिखते हैं वो जो कुछ भी करते हैं। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियादारों की मिसाल, दुनियादारों की ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान किया हुआ है। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरी, अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जो तुमको खुश्की के अंदर में और समंदर के अंदर में चलाती है। आदमी के ऊपर में जब हालात आते हैं तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और हालात ख़त्म हो जाते हैं तो अल्लाह ताला को भूल जाता है। इसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में दी है। आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ किया जाएगा।